imperative that you understand the short-term vision that we have with Operos, but then understand the long-term play when it comes to a real ecosystem that merges with real economy. For us, we've always tried to get people to understand that this is an opportunity that we could always go and just release a token into our existing ecosystems, but it would yield to provide an opportunity for people to help us mint the coin, and then they even get commissions for helping to do so. And so I think that I want to reiterate at the very basic that we truly believe in opportunity. We truly believe in lifting. It's one of the reasons why one of the first products on the store right after physical products is actually education from a top 20 university in the United States. Is we truly believe in lifting up people. So you have to understand at the very basis of Operos, there is a desire, and we would even say a need to be able to lift. I think business works best when everybody wins. And the only way the token in Operos gets issued or gets minted is when we have our affiliates or our team Operos win. When you build teams, when harvesters are sold and tokens get into supply, that's the only thing that can make this project work. That's the very first step. And it's imperative for you to realize when an opportunity is tied to that, it can help lift, help change people's lives. So I want people to remember the original reason. I think sometimes people can get too fixated on token price that goes up or a little bit down. They get too fixated on things like, oh, I'm what commissions may be this month, and they forget to realize this is a long-term project with real people with real vision, that we're going to decentralize portions of our existing ecosystem where we have a lot of revenue that's generated every year in these ecosystems, and we pay a lot of banking fees. And if we can just decentralize a portion of those systems, we'll win. We'll win big, and we can kind of put a feather in our hat, so to speak, to say, hey, we've been able to really utilize uh, crypto or a token for what it was actually created for, in our opinion, to be a transaction, to be able to be transactionally used to where we can exchange goods, real products, tangible products, and then goods and services. So I hope that people understand what Operos is at its very basis is a token to be utilized in an existing ecosystem, not one that's going to go be built, but utilized in an existing ecosystem to help us decentralize a portion of that business. Everybody always talks about decentralization, decentralization. Well, guess what? Most people are just talking about it. They're not trying to take existing businesses and decentralize portions of those businesses or units of those businesses. We actually are. And we think that we can do it. And I think that you have to be able to understand that we believe we can do it. That's why we're doing this. We have motivation to do it. And when people understand and they can paint that vision correctly, when they can truly paint the vision correctly, it'll start to open up your businesses. It will help you start to hopefully. I would love to see a lot of people on here start to build wealth. We try to get people to understand, and I did a training yesterday for a group in Ecuador, and one of their questions was, how should I look at the token? And I said, you should really look at the token as a long-term savings account for your family, for you, to where you look at commissions as where you can build income, but you also look at the token to where you actually can build maybe so a little bit longer term type savings plan as those returns are able to compound. So having the right vision and looking correctly will help you build and grow your business. And one of the most amazing portions, I know everybody on this call is nearing cluster qualified or trying to get cluster qualified. One of the important parts of this business is we wanted to give it a feel
where you could build up a residualized type of revenue to yourself. And so when you have a team, and the bigger the team, we have active requirements. If people would like to receive commission, then they need to be active in Operos. They have to have active harvester. They actually have to be investing, and maybe investing is not the right word, but they have to be actively engaged. They have to have a purchase of the harvesters. They have to be with us. And so when you build teams, uh, everything is easier when you build teams. When you have a large team and they are purchasing more harvesters, they are minting more tokens, you will see residualized type effect within your organization. And it's critical that people start to understand that the width, as they build wide, that this creates more wealth. We always say in our business a little bit that depth creates maybe a little bit of security, but width creates wealth. And so clusters are going to help you with security. You're going to get a little bit extra bonuses, but being able to have width, that's why we have 5 personally sponsored links on that first level in order to become cluster qualified. Because if you can build a team of 5 individuals and help all of them get cluster qualified, and those teams start to grow out, your cluster commissions start to increase exponentially. But if you just build one on top of another and stack it, stack it, stack it, it limits both the block team bonus and it actually limits the potential of your cluster bonus. So we want you to be able to build a little smarter, build wiser, um, and be in order to be leaders. You have to be able to educate and train people and be able to present. All of you on here need to be able to present the Operos presentation. You need to be able to take. I've seen Anshuman, I've seen you present. I've seen a couple others present. We want you to be able to take the presentation, take the slide deck, and to be able to actually expound on the project itself, understand the commissions, understand the block team bonus, understand the cluster bonus, and be able to explain our store, to be able to explain the long-term vision so that your teams can grow with duplication so they can learn to present. The people who win in this business are the teams that have the most presenters, to where all of them are efficient, they're effective, and when people hear their presentation, it makes sense. And I think that one of the most important parts of leadership is also lead by example, lead by doing. Don't expect anyone in your team to be able to present if you can't. Don't ask anyone to do something that you can't do. So learn how to present. There is no growth when you're comfortable. You have to be uncomfortable to actually grow. And so get a little bit of growth oriented mindset, get a little uncomfortable, get a little bit better at presenting, get better at inviting so you can show people what an amazing project this is for not just them now, but for maybe generations in their family as this is starting to take effect and change lives. So I hope that that gives you a little bit more taste of the vision, the taste of what we're trying to accomplish. That this will be a token that's traded and used for products all over the world. We already see worldwide growth with Operos, and this is the matter of how much commission will you be able to receive, guys. This is not something where commissions will go on forever. So we'll actually have to do additional things to the project to be able to enable commissions to go on forever. This is part of a project that has a set amount of harvesters, that has a set amount of tokens, that has a set amount of products set aside to keep that ecosystem going for the next 25 years. So you have to understand that everything behind this is math. Everything behind this is math. And sometimes it gets a little complicated on the math side, but the project itself to explain is fairly simple. And we love that it works. We see people buying harvesters every day. I see people receiving commissions. We see people selling the token and getting a return on money that they spent on harvesters. So we see it working every single day. And when you see it work, this only gets bigger as you tell people, as you work with them, show them, and tell them.
So, I hope that gives everybody a little idea of maybe some of our expectations of what we expect leaders to be able to do, a little bit better idea of the long-term vision of how we're decentralizing our organization that already exists, and then also um, a little bit about what is at stake. 7 billion USDC is nothing. That's a big deal. That's big business. You're involved with people who have large existing businesses. Uh, and for you to be able to go and have an opportunity to participate in that, it's special. It's special. You should be proud of it. You should be proud that you're able to participate. You should be proud that you're able to participate in actually a vision that's working and it will work, because anyone can go get involved in a scam, which we see every single day, day in, day out. But being able to be with real people, credible people who are engaged in trying to help and are engaged in trying to truly decentralize portions of existing economy, it's huge. It speaks volumes to who you are, and you have a home here. Go share it with people, because there's so many people who don't have a home. They're just involved in another money grab or some sort of scam. And I'm every single time we travel out and we do meetings in Operos, I'm always surprised at the amount of garbage that's out there, just the absolute sheer volume of junk that exists in the marketplace today. So, Anshuman, I'll leave a little bit of time for some questions, uh, if we have any on leadership or things that they can do. But I hope that I'm sorry that was a very long-winded answer for a little bit of vision, but I hope that helps a little bit. It's not really helps a little bit. It's really helps us to grow, understand the project. Actually, to be very honest, as I'm interacting with you and Rick and everyone, I truly understand, and I share one thing. I give one mantra to my team. The mantra is very simple. We have two part of this operas. One is your savings, one is your expenses, and we can cover our expenses not from the harvester. Harvester is our asset, produce token, and the math and our activity and our utility will create the value of our token. It will take a bit time to create a value. We should work hard. We should bring harvester, and we should not put our brain to talk about ROI, this, that. Yes, of course, we have ROI. Like, you know, we buy harvester daily. Our ROI is we are getting CL token. So that is our future. But the reality is 7 billion US dollar is USDC is waiting for us. 7 billion. And it depends on us how much we can take. It's a huge money. It's a It is. It is, and that's the decision that you have to make as leaders. Is you do get a ROI on the CL token, but that happens long term as the project continues to take shape. For example, we were testing the store yesterday. We were testing it through the shipping process in 7 different countries in the world. So as the project furthers and it continues down the roadmap, the people who are winning the most are the people who understand that in this project, they're trying to grab as much commission as they can. And when they grab the most commission, they also can purchase the most harvesters and their savings accounts grow. So this is a double-edged sword where you can win on both slices. So please, if you focus on grabbing as much of that USDC as you can, it will be life changing to you. And then you'll actually be able to purchase more harvesters. If we don't want to see people in situations, and it does happen, to where every time they get a couple of tokens,
They go and they sell it off because they're just so interested in I want to get money back and I want to grow a little bit of money. And you know what? That's okay. But there's so many other activities that you can do in Opros that can create lasting income and lasting wealth for your family, that I would concentrate on getting those commissions rolling to you, building a team. Building a team. Anshuman, if you do the math on if you have 10,000 people on your team and they each purchase a wolf, or they each purchase a lion, or they each purchase a bear, and you have volume of 1 million and you make 4 or 5% of that volume, you're looking at a monthly type of income of 20 to 30 to 40 to 50,000 USDC a month, as that is life changing. And then be able to have the CL token as a byproduct of that changing event. That's amazing. Like that speaks volumes to what you can do. And then to be able to take that CL token and exchange it for products that can be shipped to your house, or exchange it for an education for every one of your children or your future grandchildren, that's incredible. That's absolutely incredible that you can build wealth and yet also be building a savings for your long-term generations. So please don't be small in your mindset. I know people throw around, oh, 1 billion USDC or 3 billion USDC. Yes, there are companies that do that. Our Rick is the company that his family owns. They do billions of US dollars in sales every single year. We do hundreds of millions of volume of sales every single year. Understand that 7 billion of USDC payout, it's happening. I know every single person on this call has received commissions from harvester purchases. Now just get more harvesters to be sold, and you do that by growing your team, by growing your community, by helping other people with the opportunity. And when you help other people, that's the special thing about this business. It helps you. When you ensure someone else's success, when you help someone get cluster qualified on that first generation, you are earning income at the same time. And that's what makes that special. That's what makes this affiliate, this connectivity, this networking type business special. Wow. Uh, Thank you very much, sir, for giving us this information. We know, but people should feel it. Like whatever you are sharing with us is the truth, is the truth. I believe that because when I was talking with you first time in Dubai, Rick, that time the project not yet started. I remember, and we were talking, and I was thinking like a harvester, and I asked you a few silly questions. I remember. Then second time, my thinking just changed. Second time when the project launch and we start working, that time my thinking just, I changed my thinking, and I can smell really one thing. I don't look your background, Rick's background, or anything. I just know you people are doing a successful business, and the project itself is not an investment platform. But if we invest ourselves, if I invest myself to the project, then many things are going to happen in my life. And I feel this way, like it's my I invest myself, not money. If I invest myself, my everything is invested. So I believe that that's why I always invested myself. It's not that a networker invests some money to buy the product or buy a harvester. They just look for a daily ROI. They want to encash the token, and end of the day they said we are not earning from this project much. Okay, we earn some little bit of money, and that makes me okay feeling.
But if people really invest themselves in this project, they are going to get many things. I believe that none of the project in the industry can show us, hey, you can earn this much of money from this project. This much money is allocated for you guys till now, and work for this. Try to get whatever you can get it. Work yourself. We are allocating this much product. If you guys sell the product, this is the earning. So 7 billion in my 27 years of network marketing, 24 years of network marketing career, I never seen a project can give us a, a why, like, something like, a projection. This much of money is there. Now, if I know 7 billion is there, I can strategize myself how I can grab that money, how I can help my people to grab that money. The much I help my community, the much I help my team. If my team is making hell of the money from this project, then of course I also get rewarded. So I decide myself honestly, and I invest myself honestly. And I say people, don't look this as a shit project or just a small investment project. Fill it. Try to go inside of the project. Try to compensation plan is very simple, but try to understand what exactly we need to do with this compensation plan. Why Mr. Lon and Mr. Rick give us a 10% more to this new year? Why? The logic is very simple: to help us to earn money and help us to create a foundation. Is that correct, sir? That's correct. As we're giving everybody an extra 10% bonus on all harvesters sold in January from everything except Raging Bull, is that is there to help people start the year off right. It's a 10% bonus to build a foundation to start the year off right, to put a little bit more commission in their pocket so they can go and work a little harder. They can go work a little smarter. But it's there to get people launched, to get launched into this to where they can do this. I want to see people be able to go and do Operos for a living. I want to be able to see people retire from commissions they receive in Operos. I love to see people retire, and that would affect an amazing change in their life. And it's happening. I've seen this on other businesses. We were looking through the amount of commissions that we paid just in the last couple of years in one of our companies is called Trinant. There's hundreds of millions of dollars in commissions that we've paid since the existence of this company. And I look at how much money has gone out to families and how that's changed their life. I'm so excited to see what this $7 billion in commissions in this USDC. It's so exciting to see what that is going to do for individual families. Wow, this is just, 7 billion. In network marketing, I never hear from any company. Hey, everybody talks about million, but in Operas, we start talking about billions, and this is really possible. I believe that. And I have a It is. It's math. How many people are in India just alone? You have I think you're the most populated um, now country in the world. If you have just 5 to 10% of the people in India that purchase a harvester, we don't even have enough harvesters for 10% of India to purchase, one or two harvesters. We just don't. When you look at the scale of the world and you look at the scale of the teams that are growing, 7 billion is going to get paid out. We see we see hundreds of thousands that get paid out every single month in USDC now, and that grows month after month.
So when you talk about 7 billion that gets paid out, it's happening. It's not going to happen. It's happening now. I know all of you on this call, you've received commissions. That's happening now. So here's the question. How much of that will your team receive? You're in a competition with every person out there to have your team get the absolute most that you can. I Right. mean, honestly, Lauren, it's less than 1% of the populace of India. Less than 1% of the populace that if they participate in Operos, we're out of harvesters. Honestly, India has such an unfair advantage from the populist side to win, and you're at the front. You're at the front of it to take advantage of how many people are there that and you can take a big portion of those dollars that are set aside, that 7 billion that's there, you can take a big portion of it just through your own network and your own opportunities that stand in front of you. Yes, sir. It's really true, and we have the biggest opportunity in our hands. We should fill that. It's not a small business we are talking about. It's a 1 billion dollar business we are talking about, and we can achieve this. It's really truth. So, sir, I have another. We go to another part of the project, Operas, that is token. There are many people in the industry, they have a very wrong idea about the token. It's not their fault, by the way. This is a fault from the people who bring them. They always try to show people we are here, we start from here, token price is going like these. So when token price goes down, everybody start, you know, blaming to others. Hey, token price is down, we can't get a sale. So we teach a lot of people about this. So I don't ask you about this question because I really have that answer. But I want to, ask you to guide us a little bit of, uh, you know, deep tokenomics, deep tokenomics, and how we are, engage our token with our step-by-step plans, like, the ecosystem, the total utility, how we can bring this to utility, and when is the expected things. So we have a store that's launching in January. We told everybody. We were testing that yesterday. So we're going to start to see that store take shape and we're going to get that store launched. People will be able to purchase the token, exchange Change Life token for a few products. So we'll start to see the token utilization happen this month. That is just going to grow and grow and grow. Um, I think that's as simple as it really is. When you talk about tokenomics, this is a commodity backed token. This has never been done before. This is actually where the token has a peg price that's set against real products in a store where people can get them shipped. And no matter what the token price fluctuates to, they can exchange goods and products for that peg rated price. So if the token is at $10, then and let's say we have a bottle of enzymes or a bottle of transform or we have education, those are always going to be set at that peg price, and that peg price is based on the kind of the ROI that is set at the original harvester. Right now that peg price is set at 65 cents. So if someone is in the store today, they're going to get about a 22% discount on products they purchase than what we sell them at. So as soon as we have people that are purchasing our products, which we already do, they see that by using the Change Life token, they can get a 20% token. They can get a discount by purchasing it. They'll buy tokens from swaps, and then they will go ahead and exchange it on the site for products. Those products are shipped to their home. And then those tokens that are exchanged are burned. We have 95% of them that are burned. Tokens even that are purchased
for harvesters, those are also burned, 95% of them. And so as we go, we are taking tokens out of supply because this is a set project with the valuation. Meaning this, we only have so many tokens that can be exchanged for products. And so this will go in perpetuity. And this is about a 25-year project on the actual purchase of commodity. Now, once there's enough volume of trading that goes on those tokens, that will actually stabilize and equalize. And then we'll be able to truly be decentralized in portions of our business. So it's a little bit, everyone thinks that they understand tokenomics. Let me give you a little clue. Most of tokenomics that you hear about are bullcrap. They have hopes and dreams that their token is going to be utilized somewhere. We listen to so much hype about what their tokens can be used for. And my question is this: what can it be exchanged for? What can I ship to my house? What can I purchase that I can use that token for right now? And you know what the answer is 99.999% of the time? Well, nothing. You can just trade it on an exchange, or you can go swap it somewhere. But I can't buy anything with it. So you're telling me it's worthless, except for some video game companies. I can go buy some skins in a game. I can go buy some fun little widgets in a video game, or I might be able to go buy an NFT with it. But most of the time, actually, not almost all of the time, it's not being able to be exchanged for goods and services that have real value in existing marketplace, which means, are they being bought right now? Okay, I sell vitamins all over the world right now, and I have to pay bank fees every day. I pay thousands and tens of thousands in bank fees every day in order to sell my product. I'll be able to eliminate those fees, and I'll be able to actually create more wealth for our families and our employees here in the States by simply decentralizing what we already have. So that's the tokenomics. So that's what you have to understand, is when you see the store and that launches this month, you'll be able to see, look, here's a tokenomics, not future planning, but here's a tokenomics in action. Here's actually the tokenomics right in front of your face for all to understand. It's not going to be in some pie chart graph of future 10 years down the road. It's going to be happening right now. Great, sir. Yeah, people need to understand this, because what is the purpose of building this token? That is most important. That is, and that speaks to the very first thing that I said is, why are we doing this? So guys, those tokenomics, we can only sell at 65 cents of 50 billion tokens. I can only sell, 1 billion bottles of Transform over the next 25 years, or I can only sell about 100,000 students into Brigham Young University's education, into a bachelor degree. So our tokenomics is going to be used up every time someone purchases a product, and they're going to be burned down until we only have maybe 500 million or less tokens in circulation with appropriate volume, that those tokens will be bought and sold, and people will be able to continue to get a little discount on those products. And when that token burns, that peg rate will just rise up over time. It will go up over time, which will give more value to the ROI that everyone likes to talk about and join. Yeah, this we understand. So when we can expect, one questions a lot of people are asking. Even I want to clarify that in front of all the leaders. Like, we are bringing the store. So who is the existing torrent? The existing net you leaders from your existing company are going to buy, as well as we also can buy. Correct? Yeah, anyone can buy. It's the whole world is the marketplace.
Anyone can buy. We have people that want our products and services in countries where we aren't registered, where we actually don't do business, where we don't pay commissions, but they know about us. They want to use us. They want to utilize. They actually want to utilize our products. And so a token is helps us open up marketplaces we otherwise wouldn't be able to open to get our products into, because they can use them for consumer use. They're not using them for resale. So we're able to do what's called not for resale into these countries, and they can purchase existing products. And we'll continually add products to the store. Okay. At the end of the day, companies want to sell products. When we sell a harvester up front, that USDC is banked. And when that USDC is banked and we put it through our network to actually transact it into the real monetary system, when a company has a product that's sold in the Opero store, we pay them real legal tender. We pay them USD. We pay them in money for the products sold. So it benefits everyone. It's a way that other companies can get their product actually out to other parts of the world as well. Okay. It's amazing. So, the existing network, which people are buying product, paying you USD and all, when they see this product is little cheaper, so they are going to also buy. And the countries where you are not operating, but people know about the product, you are not operating means there may be some is not legal launched yet. They also can buy as a e-commerce they can buy from e-commerce platform, not sending money Correct. to other companies. Is that correct? Correct. They can just purchase it through the Opero store. So, sir, I have one more question like this. Now, you have your existing company, and you are paying all the leaders who are buying, building teams, buying products. So, if they buy from our store, what kind of a benefit they are going to get? They get it cheaper. Cheaper. So they don't get BBPV like whatever. No, No. no, they're not. They're not attached. Those are different organizations. They're not attached. Okay. So So they'll be able to get product cheaper. okay, so they only buy because the product is cheaper. So what is the plan, And everybody on here, would you rather buy a product if you could save 20% on a product that you use every day? Would you buy it cheaper? And we have a lot of people around the world that don't want to buy products from a networking company. They just want to buy products. They don't want to have to deal with a networking company. They just want to be able to buy products on an e-commerce platform. Okay. So when we are presenting the opportunity in front of prospect, we are saying always like company need to pay charges for the credit card and all those, and company need to reduce that. So that is happening in your existing network, correct? That's happening in our existing network. But remember, guys, you all talk about Trinant. That's not the only company that we own. We manufacture products. We own manufacturing facilities that are massive. We manufacture products for other companies than just Trinant. Other companies that have existing ecosystems where they sell on Amazon and they sell on Walmart.com. They sell on different platforms around the world. And they also have to pay large merchant fees, or they have to pay fees to companies to be able to be in their existing networks. And so we won't just be decentralizing portions of our business, but we'll give companies the opportunity to decentralize portions of theirs. So we may start the process, but we certainly will only be a small part of the ecosystem that will be able to decentralize. Okay. No, I just wanted to clarify, sir. That's why I am asking this to you, because in our, in Tornado, the existing network, we think that also they can use this token to buy the products
paying. They can, but they don't get PV. This is a customer base. This is customer base. And please understand that our customer base and other things are actually much bigger. To only think that we would do this in Triton is small-minded. We use that as an example to people to say, look, in this one entity, we pay this much in fees. So just to be able to decentralize a portion of that business is fantastic. But to be able to decentralize our systems as a whole is much, much better, especially for other corporations or companies that are in our space. Okay. And So, as soon as the tokens trade with enough volume that they have consistent value, then companies can choose if they would like to pay commissions or PV or do other type of rewards based on that. So yes, that will grow. And so I would love to be able to offer Change Life token rewards within my other entities. But I would have to go purchase the token in order to do that. okay. Understand, because you don't have a token. So if you give a reward Yeah, to anybody, or if you give some rewards to your existing network to buy, okay, you do this, you will get this reward of token. You can use this token to buy those products. that's correct. So I would have to go purchase the tokens. And Uh, remember, where do those tokens come from? They only come from people who are harvesting. Understand clearly. So we have a hell of the opportunity. You do. You listen, if you truly all understood the opportunity that you have before you today, you wouldn't be on the phone call now. You'd have your ass out there presenting Operos and making commissions. You'd hang up the phone and you'd go start to present because you know that you're in a race with the rest of the world. Lauren, speaking of race, we're 15 minutes late for another Zoom Yes. call. Big group. We've got to run. I'm sorry. I don't mean to cut everybody off. And Ashman, we're busy, and we need everybody to lift. Take advantage of the commissions. There are so much money to be made. Understand, sir. Thank you very much. Now we should put our ass to call somebody and do the harvester. Exactly right. Exactly right. And I don't mean to be crass, but I want you to understand that you're one of many groups that are out there, and we love all of the people that are participating in Operos. But we want you to truly understand the potential. You guys are one of the first groups that have started in Operos. So you've been some of the first meetings we've had in Dubai. I hope you take full advantage of the opportunity that you've been given. Yes, sir. I'm ready. And thank you very much for giving us Thank you all. information. Ashman, good to see you. Thanks, everybody. Yes, yes. Thank you very much, sir. We will continue a little bit of this call. क्या समझे आप लोग? ओपेरॉस आरओआई है या ओपेरॉस दूसरा कुछ करने जा रहा है? आलोक बदानी कुछ बोलने के लिए बेताब है, हम थोड़ा सुने आलोक बदानी को भी, भाई उनको भी को होस्ट देते हैं। आज सुनते हैं सबसे थोड़ा थोड़ा। अभी आपको अभी क्या लग रहा है? जो लोग इतने दिन से अपने सीएल टोकन को शेयर करके बेच के मजे ले रहे थे ना, अभी वो लोग अपनी उंगलियां काटेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया था। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सर से जब भी बात हो तो सर को एक चीज जरूर प्रस्ताव दीजिएगा कि हमारे ओपोरो स्टोर में कम से कम एक लोअर रेंज के प्रोडक्ट भी रहे, लाइक पेस्ट एंड साबुन, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको लेना चाहते हैं सर, हमारे ट्रेनोड के प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए। हमारा तो ट्रांसफार्मर जो है रहेगा ही हमारे हमारे ऊपर स्टोर पे, बट एक दो छोटे प्रोडक्ट्स रहेंगे तो वो हमारे मार्केटिंग के लिए सुविधाएं होंगी, जो अभी तक उन्होंने सर ने बताया नहीं कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। आप इतना बेताब मत सोचो। आप सोचो हार्वेस्टर से अभी पैसा बनाना है और प्रोडक्ट यूजर यूज करना है। एमएलएम में, हेल्थ केयर कंपनी में लोग क्यों फेलियर है? प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन क्यों लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता मालूम है? ड्रॉबैक क्या है? सिंपल सा एक स्वास्थ्य। ड्रॉबैक है नहीं।
हर इंडिया का इकोनॉमी एक्चुअली वेलनेस कंपनी जो पर्सनल परचेस बोलता है ना हर महीना, वो वेलनेस कंपनी में हमारे पास उतना इकोनॉमी नहीं है कि हम अपना सैलरी से या किसी से वो परचेस करें और अपना परिवार को दे, एज ए यूजर बने। हम क्या करते हैं, उसको करने के लिए हम लोग सेल्समैन बन जाते हैं। जब हम लोग सेल्समैन बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं पर जाके अटक जाता है, सेल्स नहीं हुआ, कमीशन गया। तो यहां पर हमें क्या बनाया जा रहा है आपको पता नहीं है। आप और हमें 7 बिलियन कमीशन दिया जा रहा है और हमारा सेविंग्स अकाउंट दिया जा रहा है, जहां पर हम सेविंग जो हम चेंज लाइफ टोकन बना रहे हैं आज हार्वेस्टिंग करके, वो चेंज लाइफ टोकन हमें एक बेनिफिट से, जो हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट से, एक सेविंग से, और हम जो कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, हार्वेस्टर सेल कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक कमीशन मिल रहा है, वो भी 7 बिलियन यूएसडीसी है। उसके साथ साथ जब आपके पास पैसा रहेगा, यू कैन बी ऑल्सो अ यूजर ऑफ दिस प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट। बाहर वाला तो खरीदेंगे, आप ये प्रोडक्ट को खरीद के आप भी इंडियन अमेजोन में बेच सकते हो। आप या तो आप वहां पर ही आपका रेफरेंस से बेच सकते हो। तो बेचेंगे तो कुछ ना कुछ कंपनी जो करने जा रहा है, हमें शायद पता नहीं है कल क्या होगा। हम कल का ना सोचे, हमारा अभी फिलहाल राइट नाउ हमारा काम क्या है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। हमें समझना चाहिए कि कंपनी ने ये ऑफर जनवरी पे दिया है, 10% एक्स्ट्रा क्यों दिया है। हम अपना फाउंडेशन रेडी करें, हमारे साथ जो आ रहे हैं उनका फाउंडेशन रेडी करें। हमारे साथ जितने ज़्यादा हम डुप्लीकेशन करके फाउंडेशन रेडी कर देंगे, हमारे नीचे उतना ज़्यादा क्लस्टर आएगा। जितना ज़्यादा क्लस्टर आएगा, हमें रेसिडियल इनकम मिलेगा उतना ज़्यादा। जितना ज्यादा मेरा रेसिडुअल इनकम मिलेगा, हम उतना ज्यादा अर्निंग पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद लॉन्ग टर्म इनकम क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो अभी हमें बता नहीं रहा है कंपनी। वो है, बहुत कुछ है। अब हम क्वेश्चन करेंगे वो क्या होगा, वो क्वेश्चन ये प्लान में क्या होगा, मत सोचिए। 7 बिलियन, 60,000 करोड़ दिया हुआ है मार्केटिंग प्लान में। हमें एक सेविंग्स प्लान दिया हुआ है, जस्ट जाना है दोस्त। हम और आप कोई टट्टू वट्टू कंपनी में नहीं है सर। वी आर डूइंग अ बिग प्रोजेक्ट। We are not with ROI, but we are giving a big returns to the people who invested in Harvester. कहीं ना कहीं हमारे से गलती हो रहा है, समझ नहीं पा रहे। हम मार्केट में वही करने जा रहे जो चिल्लर मार्केट में, जो आप बोलते हो, हम बोलते हैं ना, लोग आरओआई समझता है। लोग आरओआई समझता नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं, लोग समझता है मेरा पैसा सिक्योर कैसे रहेगा और इस पैसे के बदले हमारा बेनिफिट क्या है। उसको अगर आप सही से सेविंग्स बेनिफिट दिखाएंगे, जो म्यूचुअल फंड पे होता है, जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में होता है, वहां पर हम बोलते हैं कि मार्केट लिंक है। आपके पास एक फंड नहीं होता है, तीनों फंड रहता है, उसके अंदर बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का रहता है। अब उसी चीज को फॉलो करना है आपको। मेरे ख्याल से हमें समझ आ जाना चाहिए। और अगर हम राइट वे पे करें, हमारे पास बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो एजुकेटेड कॉरपोरेट लोग हैं, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे।
वो लोग भी हमारे कम्युनिटी में आना पसंद करेंगे। हम लोग एक तो नेटवर्कर के पीछे दौड़ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको आरओआई समझ के आता नहीं है कुछ। और जो हम उनको आता है, वो नॉर्मल ट्रेडिशनल लोगों को वो चीज आता नहीं है दोस्त। उसे रियलिटी आता है, उसे फैक्ट एंड फिगर्स आता है। उनको आपको सही रास्ता दिखाना है। We are not with a baby project, we are doing something big, really big. सो मैं पाठक जी को बुलाना चाहूंगा। एक बार पाठक जी भी अपना अनुभव बताएं। पाठक जी, प्लीज वेलकम। धन्यवाद अंशुमान दा। बस आप ही का पॉइंट को एक बार रिपीट करेंगे। आपने प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात किया, तो लगभग 17 साल से मैंने प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम किया है। लगभग लीडर लोग को पता है। और उसी से जस्ट अंशुमान आने वाला, तो पूरा फिगर को हम कैलकुलेट कर रहे थे कि फोर एवर कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन फिर लीडरशिप पॉलिसी नाम ले रहे हैं। फोर एवर में क्या था कि मैनेजर रैंक पे जाने के बाद 3+1 करना पड़ता था। मतलब उसको मेंटेन करने के लिए 60,000 का प्रोडक्ट बाई करना पड़ता था। और लगभग मैंने 12-14 महीने में, मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, लगभग 8 से 9 लाख का मैंने प्रोडक्ट बाई किया, जिसका हमें जरूरत नहीं था। अब मजबूरी बस क्या किया, आधे दामों में बेच दिए, कुछ टीम लीडर को दे देते थे। समझ लो सर कि वो 8 लाख का अगर यहाँ हार्वेस्टर बाई किए होते तो डब्बा खाली नहीं, डब्बा में कुछ पैसा जाता। सेकेंड कंपनी जिसमें बहुत बड़ा काम किए थे हम, वो 4 लाइफ, उसकी भी क्राइटेरिया को देखना। सब मिला करके मैं अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लगभग 30-32 लाख का मैंने प्रोडक्ट बाई किया। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने फ्री में प्रोडक्ट दिया हुआ है। उसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3500 का जब आपको दिया है तो औरों को भी बांटे होंगे। ये 30-35 लाख का अगर 100 करके भी हर महीने में एक हार्वेस्टर बाई किए होते तो कितना बड़ा इनकम हो सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो प्रोडक्ट मार्केटिंग में है उनको आप समझाओ। आप लोग सबको जानते हो सर कि सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन सप्लीमेंट से ठीक होता ये मैंने देखा है कि ऐसा संभव नहीं है। मेडिसिन काम करता है, कुछ अपना एनर्जी काम करता है तो काम कर जाता है। सर प्रोडक्ट मार्केटिंग को भी टच करो सर, प्रोडक्ट मार्केटिंग को। दूसरा क्या है कि मार्केट का जो 1% डेली 2% डेली, उस पर कंपेयर नहीं करो। बैंक पोस्ट ऑफिस का जो पैसा है सेफ, आपको वहां आरओआई अधिक मिल सकता है आपकी पार्टी को। उनको बताओ कि वहां यहाँ में अंतर क्या है, यहाँ सेफ है आपका। सर ने अभी बताया क्या, लॉन्ग टर्म। जैसे हम लोग एमवे में बोलते थे कि हमारे मरने के बाद ही पैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। सेम वर्ड का लॉरेन बेरी सर ने भी यूज किया। लॉन्ग टर्म, जनरेशन बाय जनरेशन का भी हम लोग इस कंपनी का प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा अंशुमान ने किया था टॉपिक, उसको फिर से एक बार हम भी रिपीट कर देते हैं कि ये 15%। सर हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फ्रंट लाइन नहीं खुल रहा है कि सर मेरा 15% हमको नहीं मिल पाएगा, उतना मैन पावर नहीं है। सर अपने टीम के नीचे लगाओ ना, अपने टीम में सभी को बताओ कि 15% का कैलकुलेशन पेपर में करके बताओ। सर आपसे नहीं हो सकता, सर आपके टीम में बहुत सारे लोग हो जाएंगे जो आपको क्लस्टर बनने में और 5% एक्स्ट्रा लेने में प्लस टीम का ग्रोथ कराने में बहुत बड़ा मौका मिलेगा। ये जो अभी आपके पास बचा हुआ है 22 दिन, ये 22 दिन में थोड़ा सा और मेहनत कर ले आप लोग, सबका प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने अपने टीम में और मैं खुद, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम है। हकीकत बताए तो हमसे ज्यादा प्रॉब्लम पैसों का किसी को नहीं है। लगातार 3 साल हॉस्पिटल, 60 दिन तक कोमा में, जिंदा बच के वापस आ गए। चैलेंजेस मेरे पास पैसे के हैं। मेरे टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं, भाई जैसे लोग हैं, जिनका किडनी फेलियर है, वो एवरी वीक डायलिसिस कराते हैं। और डायलिसिस के बाद उनको कॉल करते हैं कि सर कहाँ हो भाई आप, तो सर निकले हुए हैं भैया, भाई निकले हुए, दादा निकले हुए हैं यहाँ काम करने वहां करने। सर उनको क्यों नहीं ये चैलेंजेस आता है? इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होना चाहिए था कि मेरा डायलिसिस चल रहा है, हम कैसे काम करें। तो सर चैलेंजेस लेना पड़ता है, अपना भूख आपको जगाना पड़ेगा। सर ये आपका बहुत ही अच्छा मौका मिला है अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। और हमें पूरा विश्वास है, एक एनर्जी के साथ एक होकर के एक तरह का सिस्टम में मिलकर अगर काम करेंगे, हम लोग सब कोई बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। थैंक यू अंशुमान दा, माइक आपके हाथ में है। थैंक यू पाठक जी। तो निरंजन जी को बुलाना चाहेंगे। निरंजन जी अगर आप है तो आप थैंक बताएं। यू, थैंक यू, थैंक यू पाठक जी। बहुत अच्छा बात बताया आपने, एकदम हकीकत से आपने रूबरू कराया हमारे आज के सभी कॉलर से हमारे मीटिंग में।
और देखिए, ओपेरोस के बारे में इतना तो हमारे टीम को सबसे बड़ा चीज पता है कि सिक्योरिटी 100% है। दूसरा चीज क्या है कि लोगों को टोकोनॉमिक्स पता नहीं है बोल के लोग इसमें टोकन का प्राइस लेके ज्यादा बातें करते हैं। क्योंकि मैंने जितना देखा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई भी टोकन होता है ना, तो उसमें टोकन हो चाहे कॉइन हो, वो बहुत लंबा छलांग मारता है, कभी पंप हो जाता है, बहुत डंप हो जाता है। तो उसमें गिरने देखा है मैंने बहुत टाइम की, अगर 65 सेंट है तो तुरंत 10 सेंट में आ जाता है। लेकिन इधर में ऐसा नहीं है। अब मैक्सिमम से 10 सेंट से ज्यादा इसका अप एंड डाउन नहीं है। किसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे टोकोनॉमिक्स जो उन्होंने डेवलप किया है वो बहुत साइंटिफिकली डेवलप किया है। और आज बात आ रहा है $7 बिलियन का। 7 बिलियन कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। मैंने बोलता ना, जो अक्लमंद लोग जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा गलती करता है जो ज्यादा ज्यादा अक्लमंद होता है, मतलब होशियार लोग जो होता है। इस बिजनेस में बुर्बक को ज्यादा पैसा मिलता है। आपको पता है, नेटवर्क इंडस्ट्री में बचपन से ही सुना है कि बुर्बक लोग ही इसमें से सबसे ज्यादा पैसा बना देता है। तो हमको लगता है कि हमारा इस अपॉर्चुनिटी में आलोक जी, सीमंतो जी, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर्स है। उसके बाद है अपना पीके सिंगो जी है, हम देख रहे हैं सब वीडियो ऑन करके बैठे हैं। आनंद जी, मनोज जी, जितने भी लीडर, सुखेन जी, अशोक जी, ये जितने भी हम लीडर को देख रहे हैं, तो ये अब पिंटू भाई, मतलब हम लोग क्या, हम लोग एक्चुअली बुर्बक है। हम लोग सब, मैं, अंशुमन भाई, आप, फिर पाठक भाई, हम लोग सब बुर्बक है। बुर्बक है बोल के आज ने हम लोगों ने मार्केट में, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम किया है। मेरे को अभी याद आ रहा है, आप, क्योंकि आज लीडरशिप मीटिंग है, यहाँ पर कोई नया लोग नहीं है। नया लोग होगा तो हार्ट अटैक आ सकता है। कि हमने 2020 में महीने में 1-1 करोड़ कमाया इसी इंडस्ट्री से। पाठक भाई भी लाखों करोड़ों कमाया, अंशुमन भाई भी मैं जितना कमाया इसका डबल कमाया। तो बात है कि करोड़ कमाना, कोई आप बताओ तो विदाउट इन्वेस्टमेंट को इतना आसान है? आसान नहीं है। वो स्ट्रेटेजिकल होता है ग्रोथ। तो अगर 1 करोड़ कमाने वाला एक्सपीरियंस है, अगर आपको 30,000 फ्लाइट चलाने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कि ये लगातार 30,000 किलोमीटर चला के आप इंडिया से यूएस तक फ्लाइट उड़ा सकते हैं, तो एक्सपीरियंस है, अगर आपने किया है लाइफ में, तो 100% ये है कि इस बिजनेस में भी हम लोग 7 बिलियन, हम लोगों ने जितने भी कंपनी में काम किया उसमें बिलियन, जब बात तो छोड़ दो, मिलियन बनाने में सब लगे रहे थे, क्योंकि कंपनी के पास कुछ नहीं था। लेकिन उस कंपनी में से हम लोग करोड़ रुपया कमाया। लेकिन आज यहाँ पर ऑलरेडी $1 बिलियन है और $1 बिलियन कमा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रहा है, दिक्कत क्या है? दिक्कत वो हिरन वाला कहानी है, कि हिरन पूरे जंगल में घूमता है, कि सारा वो, मैंने, सॉरी मेरा लैंग्वेज, हिरन पूरे जंगल में घूम के वो सोचता है कि ये बहुत खूबसूरत एक खुशबू आ रहा है, जो परफ्यूम होता है ना, जिसे आदिल कादरी का हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा परफ्यूम है। दुबई के अंदर हम लोग दुकान ढूंढते हैं, तो जाके बर्ड दुबई में, तो एक बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे ब्रांड होता है कि उसका परफ्यूम बहुत फेमस है। 60-60 हजार, मैंने 70-70 हजार लोग खरीदते हैं लोग। लेकिन हिरन, हिरन तो इंसान नहीं है, उसको तो थोड़े आदिल कतरी पता है, थोड़े उसको और कोई भी ब्रांड पता है। वो अपना एक, मैंने, खुशबू को वो ढूंढता रहता है पूरे जंगल में। देखिए, होशियार लोग बहुत है, उन्होंने पहले से लिख दिया कस्तूरी। अरे, मेरा बात तो पहले क्लियर करने दीजिए। बात क्या है कि हरिन को, हिरन जो है, हिरन पूरे जंगल में घूम घूम के हर एक कंपनी, वो कंपनी, तीसरा कंपनी, चौथा कंपनी, ये प्रोजेक्ट हर जगह दिमाग लगाता है। लगा के जब घूम फिर के, जब अगर उसको पता चल जाता कि उसका नाभि के अंदर में, उसका सिर्फ एंड सिर्फ नाभि के अंदर में उसका कस्तूरी है, जो उसमें से वो खुशबू निकालता है, जो नाभि है, तो ये 100% है। आज ओपेरोस में जो है, हम लोग घर का अपना जो भी लीडर्स है, उनके जो अभी मैंने होम ब्रांड है, वो क्या है? ओपेरोस है। उसके अंदर ही सब कुछ है। आपको बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोडक्ट भी यही मिलेगा। आलोक जी बोला टूथपेस्ट, यस, आएगा, क्योंकि इंडिया का जितना प्रोडक्ट लिस्टिंग इंडिया में उसका करेगा, क्योंकि कंपनी बुर्बक नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग टूथपेस्ट यूज करता है, करते कि नहीं? लेकिन डायबिटीज 300 मिलियन लोगों का है। लेकिन और 300 मिलियन लोगों को पता नहीं है कि उसको डायबिटीज है। वो बोलते नहीं, मैं तो सही हूं। तो हमारा लक्ष्य वो नहीं है कि हम उसको डॉक्टर के ढूंढ ढूंढ के उसको प्रोडक्ट नहीं। जिसके पास है, दुनिया घूम लिया, कहीं नहीं मिला, उसका अंदर, और फिर उसके अंदर उसको मिलेगा। तो उसको खरीदने के लिए पैसा की जरूरत है। आई नो, आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट मार्केट में 95% लोग फेल्यूर होता है, लेकिन 95% में
70% लोग वो होता है जिनके पास पैसा ही नहीं रहता है कि वो प्रोडक्ट को खरीद ले अगला महीना फिर से। उसको प्रोडक्ट पसंद आता है लेकिन उसको खरीदने का पैसा नहीं होता है। लेकिन ओपेडोस ने क्या बोला, इससे सेविंग्स अकाउंट, जहां पर आपका पैसा जो मार्केट में आप कहीं ना कहीं रख देते हो, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, वही पैसा आप ओपेडोस के अंदर इस प्रोजेक्ट में डेवलप के लिए आप अगर उसमें हार्वेस्टर में, एक्चुअली हार्वेस्टर क्या है, ये देखो हार्वेस्टर मशीन जो बेच रहे हो ये टेम्पोररी है। ऐसा नहीं कि दुनिया जिंदगी भर बेचते रहेंगे, क्योंकि 1 करोड़ 19 लाख ही अवेलेबल था, उसमें से अभी 19 लाख तो निकल गया होगा, मैंने एग्जाम्पल के रूप से बता रहा हूँ। तो और कुछ बात धीरे धीरे सब नहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जो टोकन मार्केट में आ जाएगा, जो टोकन इसमें से आएगा वो लाइफ टाइम है, क्योंकि उसका यूटिलिटी लाइफ टाइम है। तो हमारा प्रोजेक्ट लाइफ टाइम है, लेकिन प्रोडक्ट का जो ये है वो धीरे धीरे, हमारा काम ही है कि धीरे धीरे प्रोडक्ट में ही हमको जाना है उसमें, क्योंकि हमको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहता है। मैं पाठक भाई को पूछता, पाठक भाई ने बोला कि मैं अफोर्डेबल लिविंग में 60-60 हजार का प्रोडक्ट करना पड़ता। मैं कयानी में था, मैंने महीना में 8-8 करोड़ 12-12 करोड़ 14 करोड़ का प्रोडक्ट बेचता था मैं, और बेच के 10-15 लाख जो कमीशन कमाता था। लेकिन अंशु भाई उसमें से भी बहुत अच्छा लीडर था, तो उनको भी पता कि आज का बात नहीं बोला, 2010-12 का बात कर रहा हूँ, जब जब मेरा शादी हुआ था, बहुत चैलेंजेस था, तो मैंने उसमें से काम किया था, मैंने पैसा बनाया। लेकिन प्रोडक्ट ही बेचना है, तो हम बेचने के में सेल्समैन नहीं बनना है हमको। अभी हमें इसमें प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें इस बिजनेस को डेवलप करना है, हमें लोगों को रोजगार देना है। रोजगार देगा तो वो अपने आप, अरे जिसका घर पे डायबिटीज है ना, जिनके, वो जितने बार टेस्ट कराते हैं ना, टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का दवाई जितना लेते रहता है, उसका रेजिस्टेंस एक तरफ घटता है एक तरफ बढ़ता है, आपको पता है जो इंडस्ट्री में। आप जो आप जब भी वो लेते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज का जो दवाई आता है, जो उसमें इंसुलिन आपको बाहर से दिया जाता है, वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस पता है, पहले 5 mg होता है, उसके बाद 10 mg होता है, उसके बाद 15, इसके 100 1000 तक चला जाता है। आप सभी को पता है कि जो मेडिसिन का रेजिस्टेंस है, वो जो जो हम लोग लेते हैं मेटफॉर्मिन, जिसको बोलते हैं मेटफॉर्मिन, हम लोग लेते हैं, और साथ में दवाई देते हो जो आपके इंसुलिन को इसके दबा दबा के निकलता है आपके ये से, रिपेंट केस से, कि भाई थोड़ा इंसुलिन निकल जाए, ऐसे दवाई दिया जाता है। उसके बाहर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन लॉन बेरी एक ऐसा बंदा है, लॉन बेरी सर को रिस्पेक्ट करते हैं, मैंने 1000 टाइम्स मेरे तरफ, हमारे इनके टीम के तरफ से उनके लिए ब्लेसिंग है कि उन्होंने ऐसा साइंस निकाला, उन्होंने इतना टॉप टॉप साइंटिस्ट को लिया। मैं 2013 में जो कंपनी में काम किया, उसका जो साइंटिस्ट था वो भी देखता है, अभी अभी टर्नआउट के अंदर है, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास पुराना पीपीटी भी है, होगा समय का 2013 का। वो साइंटिस्ट को भी इन्होंने हायर कर लिया है। तो उन्होंने जो निकल लिया कि सर कुछ भी खाना खाएंगे जिसमें जो भी शुगर लेवल बढ़ेगा, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, उसमें क्या रहता है, ग्लूकोज, आपको पता है ना क्या, चीनी, हम लोग डर से नहीं पीते हैं, लेकिन वो भी पी लेंगे तो उसका जो जो चीनी का जो मात्रा होगा, उसको तुरंत वो क्या करेगा, फाइबर में कन्वर्ट कर देगा। तो हमको टेंशन तो रहेगा ही नहीं। लोग जीना चाहता है, लोग दवाई नहीं खाना चाहता है, हमारा दवाई नहीं है ये, हमें मार्केटिंग का ये में जाना ही नहीं है। हमें क्या सोचना है कि हम जो सीएल टोकन प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको बांड करके हम प्रोडक्ट यूज करके हमारा फैमिली को प्रोडक्ट करेंगे। जो पापा मम्मी दादा परदादा डायबिटीज में जा चुका है, डायबिटीज में कोई नहीं मरता है, मरता है हार्ट डिजीज में, हार्ट अटैक में, क्योंकि उसको हार्ट को कमजोर कर देता है, उसको धीरे धीरे किडनी खराब कर देता है, उसका लीवर को खत्म कर देता है, उसके प्रोस्टेट को खराब कर देता है, सब कुछ स्लो पॉइजन को खराब करता है। और उसी का प्रोडक्ट मैंने वर्ल्ड का ऐसा एक दिमागदार प्रोडक्ट निकाला है उन्होंने, धासु प्रोडक्ट निकाला है, जो प्रोडक्ट से पूरे वर्ल्ड को जरूरत है, उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मार्केटेड है। उसको सीएल टोकन के माध्यम से हम लोग खरीद पाएंगे। और जिन्होंने भी बेस डाला अभी तक, सच में आलोक जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बात बोला, जिन्होंने भी अपना सीएल को बेच दिया वो तो गया, उसका तो वो सीएल वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास जितना एसेट रहेगा वही आपका सबसे बड़ा है। आपका एक छोटा किराने का दुकान है, आप सोचो, उसमें आप सिगरेट भी बेचते हो, तो चावल भी बेचते हो, किराने के दुकान में आप दाल भी बेचते हो, सब कुछ बेचते हो, आप सारा सब माल एक दिन में बेच दिया आपने, एक महीना में, और उसमें फिर से नहीं खरीदा आपने स्टॉक नहीं रखा, तो दुकान दूसरे वाला कोई कस्टमर नहीं आएगा आपके पास। तो ऐसे ही हाल है हम लोग का, कि हम लोग सोचते सब बेच दो। जो है जिंदगी आपको एक बार मिला है, लोग बोलता है कितने हजार करोड़ ये के बाद इंसान का जन्म होता है,
मैं उस चीज को बिलीव नहीं करता। हम बिलीव करते हैं इस प्रेजेंट लाइफ को, क्या था, क्या होगा मरने के बाद। आपके दादाजी को जैसे देखा जा रहा है, उसका फोटो तक भी आपके घर पे नहीं है, आपका भी ऐसे ही हाल होगा। आपके घर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो होगा, श्री कृष्ण भगवान का फोटो होगा, आपके घर में रामचंद्र जी का फोटो है, जिनको आपने कभी देखा ही नहीं है उनका फोटो है, लेकिन आपका दादाजी का फोटो नहीं है आपके घर पे। दुख का बात है, आपको भी नहीं रखेगा याद। अगर आज की गलती हम लोगों ने किया तो कल हम लोगों को पछताना पड़ेगा, क्योंकि कहावत है, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बड़ा पाप है धरती में। वो पाप करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप इधर इधर भटकते रहो। आपको मैं चैलेंज के बाद बता रहा हूँ, कलकत्ता के अंदर में, मैं आज ही अंशुमान भैया से बात हो रहा था, मैंने बात हो रहा था कि कलकत्ता में, दुबई में, दिल्ली में, कहीं भी चला जाओ, होटल में आपको नेटवर्कर दिखेगा, कोई ना कोई कंपनी का। क्यों? लोग भटकती हुई आत्मा है, उसको आज तक नहीं पता है कि क्या करना है, क्योंकि हिंदू वर्ल्ड के अंदर में जितने भी कंपनी बनता है ना, उसमें सिर्फ यूएस, जो मेड इन यूएसए होता है वही चलता है। आप मेडिसिन की बात करें, आपको पता है फाइजर वही टॉप है, फेसबुक का बात करें वही टॉप है वर्ल्ड का, वो भी यूएस का है। एप्पल का बात करें चाहे एंड्रॉइड का बात करें, जितने फोन यूज करते हैं उसके एप्लीकेशन सारा यूएस से ही आता है। मार्केट में टिकटॉक था, टाटा बाय बाय हो गया, लेकिन है क्या? एक्स, ट्विटर, साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स, वही बच गया, सब चला गया। दुनिया के अंदर में आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, खुद को ब्रांड बनाना है और ब्रांड के साथ ही काम करना है। खुद को ब्रांड बनाने का मौका आपको मिला है 2025 में, मौका दोबारा नहीं आता है मेरे दोस्त। 2025 में ब्रांड ब्रांड बनाओगे तो आने वाला 5 साल आपके उस ब्रांड के जो रश्मि है उसमें से ही आप आने वाला 5 साल को रोशन रख सकते हो आपकी टीम के अंदर। आज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कल पाठक जी के पास पैसा नहीं जाएगा, थैंक मेरे प्यार लव यू ब्रदर रहेगा, लेकिन पैसा नहीं इनकम आएगा। कल मैं उनके साथ में अगर कल मैं रोजगार नहीं दे पाएंगे, साथ में नहीं कर पाएंगे, पाठक जी भी कहीं ना कहीं वो अच्छा एक प्रोजेक्ट देके चला जाएगा। यस और नो? मतलब एग्जांपल के रूप से बता रहा हूँ कि टीम आपके साथ तब तक है जब तक डिसिप्लिन में हो, जब तक आप वर्किंग मूड में हो। जब आप चले जाओगे स्लीपिंग मूड में तो आपका लीडर काम जरूर करेगा, लेकिन आपको छोड़ के किसी और का साथ कर लेगा। इसीलिए स्लीपिंग मूड में रह के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आज लॉन बेरी सर, जो बिलियन बिलियन डॉलर का फाउंडर है, जिन्होंने कमाया, जो हर साल $8 बिलियन के ऊपर अर्न करते हैं इंश्योरेंस सेगमेंट से, उनका वेलनेस सेगमेंट से, और भी उनका बहुत सारे बिजनेस से कमाने के बाद -2 डिग्री सेंटीग्रेड में भी बैठ के टी शर्ट पहन के आपके सामने सुबह उठ के गुड मॉर्निंग टाइम में जब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसे बिलियनियर हमारे जैसे लोगों के लिए टाइम दे रहे हैं ना। हमारे जैसे लोग, हम लोगों को टाइम नहीं भी देता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उनको, लेकिन जो देता है प्यार है हमारे साथ, एक बोलता ना एक भाईचारा है और टीम वर्क है। आज हमें टीम का हिस्सा मानता है। यस सर नो बताना पाठक भाई? आज लॉन्डबेरी सर हम लोग 100%। अपना फैमिली का हिस्सा मानता है। और ये बात अंशुमान भाई को जब भी बोलता है, मैं बगल में कभी भी रहता हूं, मैं कुछ दिन पहले आउट ऑफ इंडिया था, लॉन्डबेरी सर ने बोला यू गाइज आर माय फेवरेट टीम। यस सर नो सर अंशुमान सर? यस यस। ये पाठक भाई है, अलग भाई है, अंशुमान भाई, ये बात बोला कि नहीं कि मार्केट में उनके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन बोला आप लोग हमारा खास मित्र हो, आप लोग हमारा खास सबसे बेस्ट टीम हो, और आई बिलीव कि आप लोग 50% हार्वेस्टर भी सेल कर दोगे, लेकिन उसका भरोसा को हम तोड़ने वाला कोई नहीं होता है। आज आप हमारे साथ है नहीं है, वो वजूद आपको ही रखना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा, 1 महीना होगा, 2 महीना, कलकत्ता में, आसपास में, उड़ीसा में, हम हर जगह ट्राई करेंगे। जब नहीं लोग समझेगा, जब वो डीप स्लीप में रहेगा, तो हम नहीं सो सकते हैं, हम अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम तो कहीं और चले जाएंगे। बोलते ना, झोला लेके चल पड़े
अगर झोला लेके चल पड़े तो जहां जरा बैठ जाएंगे, अगर स्टेशन में बैठा दो, एयरपोर्ट में बैठा दो, मैं तो पक्का गारंटी के साथ में, हमारे टीम में ऐसे ऐसे लीडर है, वो जहां भी जाएगा 10 मिनट भी किसी आदमी से बात करेगा, वही से बिजनेस चालू कर देगा, वही से अपना हार्वेस्टर बेचना स्टार्ट करेगा, वही से अपना बिजनेस का निर्माण करेगा। ये तो 100% गारंटी मैं बता सकता हूँ। और मेरे को इतना 100% मैं जानता हूँ, आज के दिन में आप अगर कल सुबह उठ के, अगर सुबह 10 बजे भी उठते हो, क्योंकि ठंडे के मौसम है, अब 10 बजे उठने से रात को 10 बजे तक अगर आप 10-20 लोगों को भी आप अगर प्लान दिखाओगे तो सब यस बोलेगा, लेकिन 10 लोगों को भी अगर $100 का भी आपने बेच के आओगे तो आपके पास 1,500 रोजगार आएगा। अगर गलत है तो अंशुमन सर बताएगा हमको। सर 10 अगर हम हार्वेस्टर अगर एक 100 करके बेचते हैं तो 1500 $150 आता है कि नहीं आता है, $15 करके डायरेक्ट में यस आ सकता है यस अगर बेचेंगे तो। वही चीज को डुप्लीकेट करेंगे तो हमें क्या आएगा, क्लस्टर बोनस। वही चीज को और डुप्लीकेट करेंगे तो और क्लस्टर बोनस, और क्लस्टर बोनस। मैंने एक सपना देखा है, हमारे टीम में 500 लोग है अभी, मेरा टीम में पूरा 500 लोग है, उसके अंदर अभी 13 लोग हैं जो अभी क्लस्टर बनाए हैं। अब और टाइम आने वाला है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जनवरी एंड तक हम उसको लेके जाएंगे कम से कम 30 लोगों के अंदर, और मार्च तक 100 लोगों को क्लस्टर बनाएंगे हमारी टीम में। 100 लोगों को, अगर 100 लोग क्लस्टर बनेगा, हमारा बिजनेस टर्नओवर बनेगा कम से कम होगा 20 लाख डॉलर। $20 लाख का बिजनेस हम अगर करेंगे, $20 लाख का 2.5% मेरे पास आएगा तो 100% बताता हूं, $10 लाख में होता है $1 मिलियन। यस नो अंशुमन सर? यस। तो $1 मिलियन का 2.5% कितना होता है सर? $25,000। यस, 50,000 आएगा। और $50,000 आएगा तो $50,000 कोई छोटा अमाउंट है क्या? नहीं है। हम लोग कितना कमाते थे? $1 लाख महीना में, तो $1 लाख बनाने में और 2 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, लेकिन बनेगा जरूर। 45 लाख रुपया। 45 लाख रुपया कोई छोटा रकम नहीं है मेरे दोस्त। उसको अगर आप सेकंड में कैलकुलेट मुझे तो करो, घंटे खुशबू में। आने लगी, उसकी नहीं हाँ, खुशबू आ रही है, उसकी आए निरंजन, ना। खुशबू आने लगी है। प्लास्टर बोनस हमारा अंतिम इनकम नहीं है मेरे दोस्त, उसके साथ ब्लॉक टीम बोनस जो आता है एवरी मिनट में, जब भी आप लॉगिन रखते हो 1 मिनट के अंदर आ जाता है, वो बोनस को भी जोड़ लोगे तो कम से कम महीना में 60-70 लाख रुपया कहीं नहीं जाता है मेरे दोस्त, छोटा काम करने से। निरंजन, लेट्स डू अ मैथ। मैं रोक रहा हूँ। इस हॉल पे कितने लोग हैं हम्म जो एवरीडे 1 लाख कमाता है, 10,000 कमाता है? आंसर दे भाई। 10,000 रुपया पर डे कमाता है। हैंड रेस कर दो, हैंड रेस कर दो। नहीं तो आंसर। माइक तो बंद है। शर्म शर्म मत करिए, शर्म से सब कुछ खोटा होता है। कोई नहीं है जो डेली 10,000 कमाता है। हम्म, इस रूम में कोई है 1 लाख डेली कमाता है या नहीं है कोई। कमाया है? कमाया था पहले। नहीं नहीं, हम लोगों को नहीं बोल रहे। इस रूम में हम लोग हैं जो पाठक भाई कम से कम डेली का 5 लाख रुपया कमाते थे, निरंजन भी 7 से 10 लाख रुपया डेली का कमाते थे, हम भी डेली का कम से कम कुछ भी नहीं होगा तो 20 लाख रुपया कमाते थे। और लगातार हम लोगों ने 2 साल कमाया, 3 साल कमाया। किताबुल भाई भी है। हम लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। आज मैं आप लोगों से इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल नथिंग भी है। एक वीक में 1 करोड़ कमाने वाला कोई है? हम हैं। 1 वीक में? 90 डेज में 6 करोड़, लगभग आपका 2.5 करोड़। भाई कल उधर दे देना थोड़ा कुछ। अरे पुरानी बात हो रही भाई। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता था, वहां पर ये हर दिन आईडी हिंदुस्तान है अपडेट होता पाठक था। भाई, ये हिंदुस्तान है।
अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से मेहनत करके अगर आप कुछ भी कमाओगे तो आपके पास लोगों का कमी नहीं आएगा, मांगने आ जाएगा आपको निरंजन, बिना काम। निरंजन, आप मेरा इसके बाद आपको कंप्लीट करना है। मैं तुरंत, ये मेरे को याद आया इसलिए मैं काट के बोल रहा हूँ। अगर हम लोगों ने नहीं कमाया तो प्लीज रिक्वेस्ट है, उनको फॉलो करें जो लोग कर चुके हैं। यस, अपना दिमाग यस। मत लगाइए। आपका दिमाग से आपका प्रेजेंट है। अब आप उनका दिमाग यूटिलाइज करो जो लोग हर 2-3 दिन में 1 करोड़ कमाया, हफ्ता में 1 करोड़ कमाया, महीना का छोड़ो। और हम उनको फॉलो करते हैं जो बिलियन कमाया, और बीच में हमें किसी का दिमाग लेना नहीं है। ओपेरस क्या है, नहीं है, रिसर्च करते जाएंगे तो बुढ़ा बुढ़ापा आ जाएगा। तब तक हार्वेस्टर हम खत्म कर चुके होंगे, क्योंकि हम लोग बैठे रहने वाला आदमी नहीं है। ओपन चैलेंज है आप लोगों को। इफ यू गाइज आर स्लीपिंग, आई डोंट केयर। आई वांट वन थिंग, अगर आपका पिछवाड़े पे, कलेजे पे दम है, लेट्स वर्क टुगेदर। सिंपल। नो टाइम फॉर, कोई टाइम नहीं है कि हम लोग फालतू का समय बर्बाद करें आगे के लिए। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और ये टाइम का कीमत उन लोगों से जाके पूछिए। इसका एग्जाम्पल सब कोई जानता है, टाइम का कीमत क्या है। अब आपको डिसाइड करना है। 2025 आज 9th डे है। अभी थोड़ा देर में खत्म होगा 10th डे। ये 9 दिन में आपने क्या किया जो 2025 आने से पहले आपने प्रॉमिस किया था आप अपने लाइफ के लिए करोगे? क्या उसका झलक आपने शुरू किया 2025 में? ना सेम एक्टिविटी आप कर रहे हो। दादा, बैठ के कुछ नहीं होता। लगाइए चॉकलेट बॉम्ब पीछे, लगाइए लंका पटाखा, जैसे कुत्ते के लिए पूंछ पे लगाते थे ना, और कुत्ता दौड़ता था। ऐसे आपका जिंदगी का सबसे बड़ा वाई को अपने साथ लीजिए, आपने आपने दिल पे लगाइए, और आपका दिमाग आपको डंडा मारेगा और आपको भगाएगा। सो कंटिन्यू टू निरंजन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंशुमन भाई। आपने सही बोला। एक स्टोरी याद है, या बताऊं मैं? एकदम वेलकम है। अगर आप देखो, टाइम क्या मैटर है, लेकिन मुझे नहीं लगता रात को कोई टाइम का मैटर है। कुछ सोना ही है, तो जिंदगी भर तो सोते ही हम लोग जिंदगी गुजर दी है। तो ये स्टोरी मैं बहुत बार बोला हूं, मैं बोला बस को कुत्ता क्यों काटा। आज का स्टोरी है, बहुत वो कुत्ता क्यों काटा। तो एक ऑफिस में एक बॉस बॉस था। जैसे हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम अपना बिजनेस का सब बॉस है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट बॉस है हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ये कोई हम लोग कोई जॉब नहीं करते हैं। तो एक ऑफिस था, कॉर्पोरेट ऑफिस, उसमें एक बॉस था। तो बॉस ने सेल्स टारगेट बहुत कम हो गया था इस महीने में, तो बहुत गुस्सा था। तो गुस्से से उसका जो जनरल मैनेजर है, सबसे पहले सबसे टॉप में कौन है, जनरल मैनेजर होता है, तो जीएम को दिया बहुत अच्छे से गाली। तो जीएम को गाली दिया तो जीएम भी हो गया कि टारगेट क्यों नहीं हुआ, ये वो तेरे को निकाल देंगे, ये वो एक एक टाइम दे दिया, 1 महीना देखेंगे, उसके बाद वो भी देखा कि 1.5-2 लाख का, 2-4 लाख का सैलरी चला जाएगा। तो उसने वो क्या किया, रीजनल मैनेजर को दिया गाली, रीजनल मैनेजर ने मैनेजर को दिया, मैनेजर के दिया उसके नीचे क्लर्क को, क्लर्क भी गाली सुन के उसका भी दिमाग खराब हो गया, पूरा ऑफिस में बवाल मच गया। तो क्लर्क ने किया, उसका जूनियर क्लर्क को दिया, क्लर्क उसके बाद पियोन को दिया, पियोन ने देखा कि बहुत ये है, पियोन ने जाके गेटमैन को दे दिया गाली। अब गेटमैन बेचारा क्या करेगा कि उसको तो सेल्स के साथ कोई संपर्क ही नहीं है। वो जाके घर गया, घर पे जाके देखा उसका वाइफ, भाभी जी सॉरी आलोक जी के साथ खड़े हैं सुन रहे हम लोग का। तो घर पे गया, घर पे जाने के बाद देखा कि उसका वाइफ टीवी देख रहा था, सास भी कभी बहू थी।
और उसका बेटा बाहर में बैठ के खिलौना से खेल रहा था, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा था। जाके बोला तेरा माँ पे गया है, तू ऐसे ही करेगा, तू जिंदगी में टोटो चलाएगा, जिंदगी में ऐसे बहुत सारा गाली वाली दिया। तो उसका वाइफ गुस्सा हो गया, वाइफ के बच्चे को थप्पड़ थप्पड़ मार दिया। बोला हाँ, अब जितने भी ये होता है तो आप मेरे पे डाल देते हो। तो बच्चा गुस्सा हो गया, लास्ट में आखिर में बच्चा गुस्सा हो गया, जाके एक चॉकलेट बम निकाला। अंशुमंदर जो बात बोला, चॉकलेट बम बम निकाल के सीधा गया, जाके एक रास्ता में कुत्ता मिला, कुछ नहीं मिला, कुत्ता के पूंछ पे जाके बांध के उसमें आग जला दिया। और जला दिया, कुत्ता फट 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 करके कुत्ते के पीछे लगा। कुत्ता सोचा साला पीछे क्या हो गया, वो घूमता फिरता इधर बम बास्ट हो गया, कुत्ते के लाल हो गया पीछे से। और वो कुत्ता जाके सीधा कुछ नहीं देखा, वो जिसको सामने मिला और जाके सीधा वो ऑफिस के क्वार्टर में रहता था, ऑफिस के गेट से बॉस तब जस्ट मर्सिडीज में बैठने वाला था, दरवाजा खुला तो कुत्ता देखा उसके पैर में काट करके काट दिया उसको। तो काटा तो बॉस का पैर से खून निकलते गया। तो बॉस को जब सारे लोगों ने घेर लिया, सबने यही सोचा, बॉस ने सोचा साला मेरे को कुत्ता क्यों काटा। तो वो चीजें 7 दिन में उसके पास भी ये जवाब नहीं आया कि मेरे को कुत्ता क्यों काटा। मैं सब गाली दिया, मैंने सबको काटा, लेकिन इसमें बीच में एक्चुअल में क्या हो जाता है ना, तो हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो आज तक हम लोग को नहीं पता चलता है कि हमको क्यों काटा, आज क्यों हमारे पास बिजनेस नहीं आ रहा है, क्यों हमारा क्लस्टर नहीं बन रहा है, क्यों हमारे बहुत सारे चीजें होता है हम लोग नहीं कर पा रहे। उसके पीछे एक ही लॉजिक है, क्योंकि आप अगर आपके बिजनेस का बॉस हो, आप बॉस का काम नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, आप चापरासी जैसे काम कर रहे हो, वो छोटे बच्चे के जैसे आपका सोच रख के आप काम कर रहे हो। अरे सीएल का दाम घट गया, कहाँ घटा है मेरे दोस्त, 65.65 का ही तो इस साल का हमारा पे रेट है। कहीं कोई दूसरे कंट्री से कुछ लोगों ने रेजिंग बुल ले लिया था एक बार में 10-12 तो तुरंत उसका प्राइस आप हो गया था, क्योंकि 10% हकीकत है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, डिप्लॉय है पूरा सिस्टम। कंपनी का होता तो कंपनी प्रमोशन के लिए उसको पंपिंग करके बढ़ाते ही जाता है, बढ़ाते जाता है, लोग पैसा डालेगा तो एक दिन में कट के निकल जाएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो हुआ तो बेसिक चॉइस भाई मैं, लेकिन उसके पीछे भी उस पे भी लोग नहीं रुका, बेचता ही गया, क्योंकि गरीबी के जमाना है हिंदुस्तान में। लोगों ने सोचा कि अरे हम तो हार्वेस्टर ले लिया, पैसा आ रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट कर दिया, उसमें से पैसा आ रहा है, घर चलाना है, वो अपना मंथली घर चलाने के लिए सारा खर्चा करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलाने के बाद क्या हुआ, 10 सेंट का इधर उधर हुआ तो लोगों को ये हुआ। मेरे को एक आदमी बोला, पता है सीएल का दाम घट गया ना, इसलिए मेरे प्लान दिखाने में दिक्कत आ रही है। भाई अगले को थोड़ी ही पता है कि आप क्या बेचने जा रहे हो, अगले को थोड़ी ही पता है कि प्राइस क्या क्या है क्या नहीं है। आपके माइंड का प्रॉब्लम है, बीमारी बाहर नहीं है। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, आपको पता है, मेडिकल साइंस में प्रूव हुआ है, डायबिटीज बोल के कुछ चीजें है ही नहीं, वो आपका दिमाग का है। 100% बता रहा हूँ, वो आपका दिमाग का है, वो आपको सबसे ज्यादा डेथ कर देता है। आज हमारे टीम में ऐसे एक भाई हैं जो एक बहुत क्रॉनिक डिजीज से भूग रहे हैं, वो सही है, लेकिन वो हमसे सबसे ज्यादा काम करता है मार्केट में, फील्ड में। वो थकता नहीं है, रुकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, मैं कल उसको फोन किया, भाई मैं 2 घंटे के लिए मैं कलकत्ता आया, आप तू मेरे से मिल ले एक बार। बोलता है भाई मैं अभी मीटिंग करने के लिए मैं उड़ीसा जा रहा हूँ, उड़ीसा में मेरे को 10 लोगों को 10,000 का हार्वेस्टर बेच के क्या टारगेट है, मैं कंप्लीट करके ही घर भेजूंगा, कि वो क्लस्टर है। और आके सीधा मैं डायलिसिस करके मैं घर घुसूंगा, उसके बाद आपको फोन करूंगा, अगर अवेलेबल है तो मिल लेंगे हम। मतलब सीरियस वो है, जिनको पता है कि मुझे हमारा लक्ष्य पता है, हमको उसको कंप्लीट करना है। मैं ऐसे दिग्गज लीडर को सैल्यूट करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म से। मैं जानता ऐसे ऐसे अगर क्लस्टर्स हमारे टीम में अगर 100 बन जाएगा तो 1000 क्लस्टर बनने में टाइम नहीं लगेगा। और अंशुमन जी बता दिया मेरे को, तो एकदम 100% दिख रहा है 2026 में 5 तारीख जो क्लस्टर बोनस कूदता है ना, रात को 10:30, 11 बजे, 12 बजे, वो आपके खाते में $5 लाख से नीचे नहीं आएगा पर मंथ। $5 लाख कैलकुलेट कर सकते हो, बेचने जाओगे तो आपको बिनांस में अगर एक बार भी बेचने जाओगे तो साइबर क्राइम खा जाओगे आप, इतना इतना बड़ा अमाउंट आता है। आप 100% बिलीव रख लो, आपका शनि खराब है, बोलते हैं ना। हमको एक बंदा मिल गया, आज मैंने इसको प्लान दिखा रहा था, तो वो बंदा बोला कि सर आपका बोला कि अभी ना ये इस साल में ना शनि खराब बोल रहा है, शनि खराब है, मंगल का खराब है। मतलब भाई कुछ खराब नहीं है,
खराब हम लोगों का सोच है, हम लोगों का गलती है। हम लोग ये सोच लिए हैं कि कुछ भी हम इसमें से एक हार्वेस्टर ले लेंगे, कुछ लोगों को बेच देंगे और बैठ के खाएंगे। बैठ के काम करने वाले लोग कलकत्ता में गली गली में घूमता है। बैठ के काम काम करने वाले लोग बिहार झारखंड में गली गली में, उड़ीसा में तो बहुत लोग हैं। वो सोचता है कि गली में हम कुछ सेट कर देंगे, सेट वर्कर की तरह, और हमें बैठ के क्लस्टर बोनस आएगा और हम बेहतरीन जिंदगी जी लेंगे और मजे करेंगे जिंदगी में फैमिली लेके। नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। लॉन सर -2 डिग्री में भी मीटिंग करने का डेट देता है और आता है हर वीक। वो मैं जब भी हम लोग देखते हैं तो कहीं वो कैलिफोर्निया रहता है, कभी वो उसके लॉस वेगस में रहता है, कभी वो न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। वो जब मल्टी बिलियनियर होने के बाद अपने वो वक्त के साथ वो नाइंसाफी नहीं करता है, तो आप और मैं कौन सा हरिदास पाल है, बांग्ला में बोलता है हरिदास पाल, আমরা हरिदास पाल। हम लोगों का जमींदार लोग क्यों चला गया दुनिया से? जमींदारी प्रथा नहीं चलता है, कौन रह गया मार्केट में? एंटरप्रेन्योर रह गया। एंटरप्रेन्योर तब भी था, आज भी है, आगे आने वाला दिन में भी रहेगा। इतना ही मैं बोलूंगा। आप जानते हो दिलजीत बोल के एक तो सिंगर है, बहुत गांव में रहता था, कलकत्ता में आया था ना, उसका टिकट का 1 करोड़ रुपया का बिका। म्यूजिक कॉन्सर्ट करता है, सिंगर है। उसका मैं एक वीडियो देखा था, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ उसका वीडियो चल रहा था, उसके साथ बातें कर रहा था मैं, उसका वीडियो मेरे पास आया था। एक गांव का लड़का, आज उसका एक शो का टिकट बुकिंग होता है 100 करोड़ का। लेकिन उसका शेड्यूल देखो आप, 90 डेज का पूरा। 90 डेज में 90 डेज बुक होता है। क्यों? पैसे का कमी है क्या उसको? डेली उसको कितना खर्चा करेगा वो? नहीं सर। जो रियल में मल्टी बिलियनियर होता है, जो रियल में कुछ करना चाहता है, वो ना रुकता है ना झुकता है, ना उनके लिए धूप है, ना उसके लिए सर्दी है, ना उसके लिए खांसी है, ना वो खिखी खिखी करता है, कुछ नहीं करता है। वो काम पे फोकस रखता है, क्योंकि उसका काम है, मैं जब तक मेरा गला है, मैं जब तक गाना गाऊंगा तो मुझे लोग मानेगा, लोग मेरा कॉन्सर्ट में आएगा, लोग सुनेगा और मेरे को पैसा देके जाएगा। और हमारा बिजनेस क्या है? जितना काम करेगा, जितने नीचे लोग आएगा, क्लस्टर बनेगा, लोग रोजगार करेगा, आप भी दिलजीत जैसे आप भी कमा सकते हो। आपकी मीटिंग सुनने के लिए लोग आएगा, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा बीमारी क्या है हिंदुस्तान में? सबसे बड़ा बीमारी क्या है सर? लोगों का पैसे का बीमारी। क्रेडिट कार्ड लोन, ये लोन में जुझे हुए हैं, इससे कमिटमेंट से फॉल्स कमिटमेंट हो गया, बहुत सारा लोन में सर लोग फंसे हुए हैं। आपसे भी ज्यादा फंसा हुआ है मुकेश अंबानी। आपसे ज्यादा लोन उसका, कई हजार करोड़ का लोन चल रहा है उसका, विदेशी बैंक में, इंडियन बैंक में, बहुत जगह में। लेकिन वो नहीं रुकता है, वो काम करता है भाई। उसके घर जो है ना, वो पूरे पूरे 1 साल भी नेटफ्लिक्स में मूवी देखता रहेगा ना, अपने घर पे बैठ के। मल्टीप्लेक्स, उसका घर पे भी प्लेक्स है, होम प्लेक्स। घर पे बैठ के जो फ्लेक्स है, वो कोई भी इंडिया में इतना बड़ा मल्टीप्लेक्स नहीं बना उसके घर पे अंदर जो है। आपको पता है उसका घर कितना हजार करोड़ का है? तो आप कितने 100 करोड़, 1000 करोड़ में खर्चा करके बनाया है? तो वो क्या देखता है? आपको लगता है कि वो नेटफ्लिक्स देखता है घर पे बैठ के? नहीं देखता है सर। उसके पास तो अरे इतना बहुत कमा लिया भाई, नेटफ्लिक्स देखो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, सबके शादी में जाओ, करोड़ों रुपए का गिफ्ट दो, कर सकता है वो। लेकिन नहीं करता है मेरे दोस्त। वो भी आज के दिन में काम पे फोकस रखता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें $7 बिलियन रेडी करके जो कंपनी बैठा हुआ है अपना तिजोरी लेके, और पूरा वर्ल्ड में जिन्होंने 92 ईयर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, जिन्होंने 27 ब्रांड को स्टैब्लिश करके, रिक फॉक्सन का जो ग्रुप है, जो आज इतना बड़ा उन्होंने मैंने धमाका मचा के रखा है यूएस के अंदर में, जिनके इतने सारे मैंने आउटलेट्स है, जो इतने सारे तरीके से रोजगार करते हैं लोग, वो लोग जब भरोसा दे रहे हैं हम लोगों को कि आप लोग बहुत अच्छा इनकम कर सकते हो, आपके लिए बहुत कुछ खड़ा किया हुआ है। जो हिंदुस्तान के अंदर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, सबसे टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, सालाना जो जितना वो टर्नओवर करते हैं, उतना तो चैरिटी में डाल देता है इन लोग। क्या पाठक भाई, गलत बोला तो बताना, चैरिटी करते कि नहीं लोग? बिल्कुल बिल्कुल। पैसा चैरिटी में डालता है। तो हम लोग को से ज्यादा गरीब भिखारी कौन है मार्केट में? कोई नहीं है।
आज इतने पैसा चैरिटी में डालने वाले लोग आज हम लोग को बता रहा है कि आप लोग इसको अच्छे से करो और इसमें से आने वाला दिन में बहुत बड़े कुछ होने वाला है। भैया सिग्नल तो समझ लो। आपके शहर का जब पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिया जा रहा था आप क्यों नहीं लिया? क्यों सर, क्या गलती था आपका? नॉलेज आपके शहर में ज्यादा था। जब गैस का एलपीजी गैस का जब लाइसेंस दिया जा रहा था आप कहाँ थे उस समय? आपके शहर में जब इंटरनेट का जब एजेंसी दिया जा रहा था आप कहाँ थे उस समय? आपके शहर में क्या मैकडोनल्ड्स का एजेंसी नहीं मिला? आपके शहर में हर चीज का एजेंसी था। आपने क्यों नहीं ले पाया? आप क्यों गरीब हो? क्योंकि हम लोग स्वभाव से गरीब है। अभाव से गरीब लोग, एक भिखारी मिला, उसको इसको पूछा भाई तेरे पास क्रेडिट कार्ड है? बोला नहीं है। तो लोन तो है नहीं। तेरे पास हाउस बिल्डिंग लोन है? नहीं है। तेरे पास कोई भी तरह का लोन है? नहीं है। तो क्या करता है कि दिन में जाता हूँ 500 लोगों से 10-10 रुपए लेता हूँ तो मेरे को 5-10 हजार रुपए डेली आ जाता है, उससे मेरा अपना सेविंग्स कर रहा हूँ। वो तो हमसे भी ज्यादा अमीर है भाई। वो तो दिन भर मेहनत तो करता है ना, धूप में खड़े रह के इधर में रोड में। लेकिन हम तो सोचते हैं मिडिल क्लास सबसे ज्यादा। मालदा मालदा टाउन है ना अंशुमंदा, मालदा टाउन में एक बार बहुत बड़ा बाढ़ हुआ था 73 या इसमें। उसमें पता है एक न्यूज़पेपर आता था कि उसमें अभी वो नहीं है, न्यूज़पेपर बंद हो गया, उसमें आया था कि गरीब लोग नहीं मरा, अमीर भी नहीं मरा, मरा कौन? मिडिल क्लास मर गया सब। उस बार में क्यों? गरीब दूसरे के घर से जो चावल उगलाता था तो उसका जो मार आता है ना, उसका भात चावल का जो उसका उगला हुआ जो वो पी के ऐसे करके वो जीत गया। अमीर तो था, उसके पास स्टॉक पहले से था। गरीब मिडिल क्लास वाले, मैं जाके अंशुमन शाह के घर से वो चावल का वो मार खा लूं, मैं पुराना एक दिन का पुराना चावल खा लूं, मैं पागल हूं मैं ये वो ऐसे करके मैं करके खत्म हो गया था। और पेपर पे निकला था कि सबसे ज्यादा लोग मिडिल क्लास में रहा। तो हमारा मिडिल क्लास जो मेंटलिटी है उससे बाहर निकलना है हमें। या तो हमें सोचना है कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ सीखना है, मेरे को कुछ आगे जाना है, तो 100% है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही है। आज का मीटिंग इधर पर हम लोग समाप्त करते हैं। बोलते ना जब जगा तब सवेरा। कल आप सुबह जग जाओ, आपके लिए कल से सवेरा स्टार्ट होगा। 10 तारीख से आप स्टार्ट करो, 20 दिन आपके हाथ में है। और आपके पास 10% मैंने 10% का एक्स्ट्रा बोनस है। आप सोचो मत, आप दिन में अगर 20 लोगों को ही प्लान देखोगे, 10 भी जग गया तो आपके पास डेली 14-15 हजार आ सकता है। आप उससे ही स्टार्ट करोगे तो वो कल लायन लेगा। और वो कल कुछ भी लेगा तो आपको डायरेक्ट कस्टमर है, वो डायरेक्ट लायन अगर ले लिया तो आने वाले दिन में कोई भी प्रमोशन रहेगा तो आपके पास भी $300 आ सकता है। अगर लाइन ले लिया तो $300 आएगा आपके पास एक एक ज्वाइनिंग में। तो आप उसके ऊपर काम करो। 24/7 हेल्पलाइन क्या है हमारे सर? 9 PM जूम मीटिंग, ये हमारा 24/7 हेल्पलाइन है। और ये एटीएम कौन है? एटीएम हमारा हार्वेस्टर मशीन है। आप अच्छे से छपाओ मशीन से, अच्छे से पैसा बनाओ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। अगर मेरे बात में कोई भी ठोस पहुंचा तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। लेकिन माफ उसी दिन करना जिस दिन आप और हम सब मिलके इस बिजनेस के बहुत बड़े जगह में चले जाए, उस दिन पक्का माफ कर देना। नहीं तो जो टीचर हम लोग को बचपन में पढ़ाई करने के टाइम में डंडा से मारता था ना, उसको बहुत गाली देते थे उस समय। हम लोग साले को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको धोती फाड़ देंगे। लेकिन अभी हम लोग सोचते हैं जब हम लोगों का कुछ नहीं होता है और वो टीचर को हम लोग रास्ते में के प्रणाम करते हैं, बोल के वो जो डंडा मारा था बोल के आज कुछ भी हम लोग पैसा कमा रहे थे तो उसके चक्कर में कमा रहे हैं। अगर नहीं मारता तो हम लोग खत्म हो जाते हैं, एडुकेशन भी नहीं होता, हम लोग स्कूल फाइनल भी नहीं होता है। इसलिए ऐसे टीचर को थैंक यू सो मच। कभी कभी अंशुमंदा के बात में कोई गुस्सा हो जाता है, कभी हमारा बात में, कभी पाठक भाई के बात में, कभी आलोक भाई के बात में, किसी के बात में कोई गुस्सा हो जाता है। गुस्सा मत करो, आपका लाइफ है, आपको 100% आपको सही करना है। हम लोग कोई बॉस और जॉब जॉब वाले बंदे नहीं है। हम लोग क्या है, पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, बट इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर। सब अपना अपना एलएलपी कंपनी, एलएलपी है हम लोग, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी। सबका लाइबिलिटी अलग अलग है, सबको उस लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए हम लोग काम करना है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। सबका फिर मिलेंगे। और कंटिन्यू हम लोग का जब भी मीटिंग रहेगा तो आप कम से कम कोशिश कीजिए मीटिंग को अटेंड करें और कुछ सीखने का try कीजिए और काम करने का ट्राई। ओके, धन्यवाद।